Hello everyone, welcome to my channel Let's Make Bio Easy. In this video, I will be talking about respiration, which is another life process and which is very essential because it is the only life process which generates energy, and that energy acts as a fuel for the various other life processes. So let's start. First of all, what is respiration? Respiration is a process by which energy is released from the digested food, and it takes place in every cell of the body. So it is also known as cellular respiration because ये हर किसी सेल बॉडी के सेल में होती है, इसीलिए हम इसको और भी क्या बोल सकते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन. द बेसिक chemical reaction of the cellular respiration is that food, when comes in contact with oxygen, the food gets oxidized into carbon dioxide and water, which acts as a waste material, and lots of energy is generated. So why is respiration essential for life? Because it provides energy which is used for the other life processes which are very essential to keep a living organism alive. Another important point regarding respiration is that it is a process which is opposite to the process of photosynthesis. अब photosynthesis में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट जनरेट करते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. बट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में फूड है या ग्लूकोज है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है इन रेस्पिरेशन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, and lots of energy is released. So basically respiration is a process which is opposite to the photosynthesis. Photosynthesis is the making of food and respiration is the breakage of food to release energy. So before proceeding further, we should know the difference between breathing and respiration. So what is breathing? Breathing is just a process of taking enough oxygen and releasing carbon dioxide. But respiration is the process कि जो oxygen हमने take in करी है उसके through oxidation हो food की to release energy. So basically breathing is the first step and respiration is the second step of the breathing, we can say that. So breathing is just a physical process of taking in oxygen and releasing carbon dioxide, but respiration is more of a chemical process in which food is oxidized. And breathing takes place in lungs, but respiration takes place in every cell of the body inside mitochondria. And breathing is a simple process, just taking in of oxygen and releasing carbon dioxide is a simple process, but respiration is more of a complex process which requires many enzymes. I hope you understand this much. Next, now how the energy released during the respiration is stored. क्योंकि जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो सारी की सारी तो उसी वक्त यूटिलाइज नहीं कर सकती बॉडी, तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है दैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर द आगे के प्रोसेसेस के लिए. द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द सेल्स. नाउ व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स बनते कैसे हैं? अब रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, सेल्स में एडीपी दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, बट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जब एनर्जी जनरेट होती है तो एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स कंबाइन टू फॉर्म एटीपी मॉलिक्यूल्स. एंड और इन एटीपी मॉलिक्यूल्स में क्या है, एनर्जी स्टोर्ड है और ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं. बट जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, जब सेल्स को एनर्जी की जरूरत है, दीज एटीपी मॉलिक्यूल्स फर्दर ब्रेक डाउन इनटू अगेन एडीपी एंड फॉस्फेट एंड एनर्जी इज रिलीज. सो दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस कि जब एनर्जी एक्स्ट्रा है तो एटीपी मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो एटीपी मॉलिक्यूल अगेन ब्रेक्स डाउन इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. Further, the types of respiration.
Basically, the respiration takes place in the presence of oxygen, but sometimes or some microorganisms perform respiration in the absence of oxygen. Sorry. So, based on the presence or absence of oxygen, the respiration is of two types. First is aerobic respiration. Aerobic is in the presence of oxygen. तो मतलब जो भी respiration in the presence of oxygen होगी, उसको क्या बोलते हैं हम? Aerobic respiration. Second is anaerobic respiration, जो respiration in the absence of oxygen होती है. So let's discuss about these in detail. First of all, what is aerobic respiration? Basically, it is a respiration which uses oxygen for complete breakage of food. मतलब इसमें food की complete breakdown हो जाता है into carbon dioxide and water in the presence of oxygen. And high amount of energy is released during this process, which is stored in the form of ATP that we have already discussed. So the chemical reaction of aerobic respiration is this. The respiration takes place in two steps. First, the glucose molecules are converted into pyruvate molecules. One molecule of glucose is converted into two pyruvate molecules, and further these two pyruvate molecules gets oxidized in the presence of oxygen and gets converted into carbon dioxide, water, and 38 molecules of ATP. So one molecule of glucose is converted into 38 molecules of ATP, which is a very high amount of energy. And I must also tell you that जो फर्स्ट स्टेप है ऑफ दिस एरोबिक रेस्पिरेशन, ये होता है साइटोप्लाज्म में. दैट इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, एंड दिस step does not require any oxygen. But the second step, that is pyruvate to carbon dioxide and water conversion, this step takes place in the mitochondria, and this step requires oxygen, and this step requires oxygen, which is very essential for the complete breakage of food into carbon dioxide and water. So this is aerobic respiration. And in the diagram, I must show you that this is a cell and this is the cytoplasm. This is nucleus. You must know that one molecule of glucose is converted into two molecule of pyruvate in the cytoplasm. Now this pyruvate diffuses into the mitochondria. Mitochondria is also known as पावर हाउस ऑफ द सेल. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सो इट इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज होती है. नाउ द जो पायरुवेट बना है साइटोप्लाज्म में, दैट डिफ्यूजेस इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, व्हिच इज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. So this is aerobic respiration. Let's move on and discuss about anaerobic respiration. अब एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? ये रेस्पिरेशन है जो विदाउट ऑक्सीजन होती है. जो सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक यीस्ट और बैक्टीरिया, दे परफॉर्म ऑब्टेन एनर्जी बाय परफॉर्मिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन. और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी फूड है या ग्लूकोज है उसको कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. So, and small amount of energy is released during anaerobic respiration as compared to aerobic respiration. तो इसमें क्या है? ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में इन साइटोप्लाज्म, एंड अब इसमें क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो पायरुवेट है कन्वर्ट हो गया इथेनॉल. दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल, एंड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, and only two molecules of ATP are produced. But in aerobic respiration 38 molecules of ATP were produced, but in anaerobic respiration only a small amount of energy is generated, which is 2 molecules of ATP. And you must also remember that the whole process of anaerobic respiration that takes place in yeast or bacteria, that takes place in the cytoplasm of the cells. But in aerobic respiration, the second step of the respiration, that is conversion of pyruvate to carbon dioxide and water, took place in mitochondria. Another anaerobic type of anaerobic respiration takes place in human muscle cells. Basically, humans perform aerobic respiration, but sometimes during vigorous exercise or something, muscle cells undergo anaerobic respiration. तो इसमें क्या होता है? ग्लूकोज
की कन्वर्जन हो गई पायरुवेट में इन द साइटोप्लाज्म, लेकिन कभी कभार जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है या ऑक्सीजन कम है मसल सेल्स के पास, तो लैक्टिक एसिड जनरेट होता है और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जनरेट होते हैं। ये कब होता है? जब हम कभी एक्सेस विग्रस एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, और इसी विग्रस एक्सरसाइज के परफॉर्मेंस के टाइम हमें क्या होते हैं? मस्कुलर क्रैम्प्स हो जाते हैं। एंड मस्कुलर क्रैम्प्स क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड्स इन द मसल्स। अब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों परफॉर्म करते हैं? क्योंकि ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज जो ब्लड है वो इतनी ज्यादा ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करवा पाता जितनी जल्दी वो यूटिलाइज हो रही है। सो समटाइम्स ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं मसल्स, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड जनरेट होता है, और लैक्टिक एसिड जनरेट होके स्टार्ट्स टू एक्यूमुलेट इन द मसल्स, जिसकी वजह से हमें पेनफुल मस्कुलर क्रैम्प्स हो जाते हैं। एंड वन बेस्ट वे टू ट्रीट मस्कुलर क्रैम्प्स इज वन शुड बाथ विद द हॉट वाटर। अब हॉट वाटर क्या करेगा? हॉट वाटर क्या करता है? जो ब्लड की सर्कुलेशन है टू द एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी वो इंक्रीज करता है। अगर ब्लड की सर्कुलेशन इंक्रीज होएगी तो ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी जाएगा मसल्स के पास या एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन जाएगा तो वहां पे क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाएगा और लैक्टिक एसिड की ब्रेकडाउन होनी शुरू हो जाएगी और मस्कुलर क्रैम्प्स ठीक हो जाते हैं। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ 2 टाइप, जो एक तो बैक्टीरिया या यीस्ट परफॉर्म करते हैं जिसमें इथेनॉल बनता है, और सेकंड जो मसल सेल्स वगैरह में होती है जिसमें लैक्टिक एसिड जनरेट होता है। मूविंग ऑन, लेट्स know the difference about aerobic respiration and anaerobic respiration। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि aerobic respiration presence of oxygen होती है and anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen। aerobic respiration में complete breakdown हो जाती है food की into carbon dioxide and water, but during anaerobic respiration partial breakdown हो जाती है food की। aerobic respiration के end products क्या है? carbon dioxide and water। anaerobic respiration के end products क्या है? इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। High amount of energy is generated during aerobic respiration, and high amount of energy means 38 molecules of ATP from 1 molecule of glucose, but during anaerobic respiration low amount of energy is generated, only 2 molecules of ATP are produced from 1 molecule of glucose। I hope you understand till now, so let's move on। Now we will discuss about respiration in plants. Like humans or like animals, respiration also takes place in plants, which is used for to obtain energy. And few important points about respiration in plants is that all parts of the plant like roots, stems or leaves perform their respiration individually। मतलब ये नहीं है कि एक ही जगह रेस्पिरेशन होती है, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो प्लांट है वो अपनी अपनी रेस्पिरेशन खुद परफॉर्म करते हैं, और जो ट्रांसपोर्ट है गैसेस की फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अनदर इज वेरी लिटिल, and the respiration occur in plant at a very slow rate as compared to respiration in animals, which we will discuss later on। And all the parts of the plant absorb oxygen for respiration by the process of diffusion। मतलब जो भी plants को ऑक्सीजन चाहिए या वो ऑक्सीजन टेक इन करते हैं, वो कैसे टेक इन करते हैं? by the process of diffusion। और diffusion क्या है? it is the process by which molecules move from higher concentration to the रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। अब हमें पता है कि एयर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्लांट, तो मतलब वो एयर कहां से मूव करेगी? ऑक्सीजन कहां से कहां मूव करेगी? फ्रॉम एयर टूवर्ड्स द प्लांट। तो दिस प्रोसेस इज डिफ्यूजन। नाउ we will discuss about respiration in roots। अब roots तो हैं वो जमीन में हैं, that they are not in direct contact with the air, so how they take up oxygen from the air? तो रूट्स क्या करते हैं? रूट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, जो कि सॉइल पार्टिकल्स के अंदर बीच में, सॉइल पार्टिकल्स के इन बिटवीन जो एयर प्रेजेंट होती है वहां से ऑक्सीजन ले लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब रूट के ये रूट्स हैं, रूट के ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है? रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या करते हैं? ये थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन टेक इन करते हैं, और जब रूट हेयर टेक इन कर लिया ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन रीचेस एवरी सेल ऑफ द रूट।
नाउ अब सेल्स में क्या होगा, रेस्पिरेशन परफॉर्म हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कम्स टू द रूट हेयर्स और डिफ्यूजन के थ्रू वापस बाहर चली जाती है। Understand, root hairs are the main area where diffusion takes place of the respiratory gases. Now, water logging can result in plant killing. How? अगर बहुत ज्यादा जैसे खेतों में पानी या गमलों में हम पानी डाल देते हैं तो कई बार उसकी वजह से भी प्लांट्स डाई ऑफ हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जब पानी बहुत ज्यादा है तो जो भी सॉइल पार्टिकल्स के इन बिटवीन एयर प्रेजेंट होती है वो खत्म हो जाती है। उस वजह से एयर खत्म होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती हो। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो प्लांट स्टार्ट्स टू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या होगा, एक अल्कोहल जनरेट होगा और अल्कोहल की एक्यूमुलेशन की वजह से प्लांट्स विल डाई, plants will start to die. So water logging is sometimes very harmful to the plants, so it must be taken care of. Now moving on, we will discuss about respiration in stems. स्टेम्स में क्या होता है, जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं, मतलब जिनकी स्टेम ग्रीन कलर्ड हर्बेशियस सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं, उनके स्टेम में क्या होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स विच आर फॉर द गैसियस एक्सचेंज। अब स्टोमेटा क्योंकि एयर की प्रेजेंस में है तो जब भी प्लांट्स को रेस्पिरेशन करना है, स्टेम को रेस्पिरेशन करना है, तो ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूजेस इनटू द स्टेम थ्रू दैट स्टोमेटा and the oxygen reaches to all the cells in the stems for respiration. Now the respiration is performed, मतलब respiration हो गया है, and carbon dioxide is produced which diffuses out again into the air through the same stomata जिसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर आई थी। So stems के पास कौन सा ऑर्गन है, स्टोमेटा फॉर द गैसियस एक्सचेंज, जैसे कि रूट्स के पास क्या था, रूट्स है। अब ये तो थी हर्बेशियस प्लांट्स के पास टोमेटा होते हैं, बट इन केस ऑफ वुडी स्टेम्स, मतलब जो वुडी स्टेम्स होते हैं, हार्ड स्टेम्स होते हैं, दे हैव लेंटिकल्स इंस्टेड ऑफ टोमेटा फॉर द गैसियस एक्सचेंज, दे हैव लेंटिकल्स। Now moving on, respiration in leaves. Respiration in leaves also occur ऑलमोस्ट सिमिलरली। द लीव्स के पास भी क्या है, स्टोमेटा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में जो गैस एक्सचेंज होता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। सिमिलरली रेस्पिरेशन जब लीव्स में होती है तो गैस एक्सचेंज कैसे होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर जो भी है वो थ्रू स्टोमेटा डिफ्यूजेस इन करता है लीव्स में, और एवरी सेल में आफ्टर रेस्पिरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है दैट डिफ्यूजेस आउट इनटू द एयर थ्रू द सेम स्टोमेटा। So basically the respiration in plants is a very simple process जिसमें gas exchange हो रहा है through the process of diffusion and through specific organs in the specific part of the plants. तो respiration होने के बाद उससे take in और release of carbon dioxide और oxygen हो जाता है। तो अब एक बात आपको जरूर पता होनी चाहिए कि रेस्पिरेशन इन लीव्स अकर ड्यूरिंग डे टाइम एज वेल एज नाइट टाइम। रेस्पिरेशन दोनों टाइम होनी है, डे टाइम भी हो रहा है, नाइट टाइम भी हो रहा है, बट फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। जो फोटोसिंथेसिस है, मतलब जो फूड जनरेट हो रहा है प्लांट्स में, वो सिर्फ दिन के टाइम में हो रहा है। तो नेट एक्सचेंज कैसे होगा, तो ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट ऑफ द प्लांट्स, मतलब जो ऑक्सीजन एक्सेस है वो प्लांट से बाहर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इन। क्यों? क्योंकि दिन में रेस्पिरेशन भी हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। रेस्पिरेशन से क्या होता है, जो भी रेस्पिरेशन से क्या हो रहा है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान यूटिलाइजेशन हो जाती है उसकी, और यूटिलाइजेशन में वो कंज्यूम हो जाती है। लेकिन जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दैट डिफ्यूजेस आउट ऑफ द प्लांट। बट ड्यूरिंग नाइट क्या हो रहा है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही है लेकिन रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द लीव्स बट कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट इनटू द atmosphere during night. So this was all about the respiration in plants. In the next video, we will discuss about respiration in animals. I hope you understand everything about respiration.
that I have discussed in this video. If you have any query related to it, please leave your comments in the comment section below and subscribe to my channel Let's Make Bio Easy for the latest updates. Thank you for watching.